Hello, a very lovely good evening from here as always, and hope that each one of you are absolutely fine and as vibrant as the mornings of resplendent hill stations. So now continuing with the series of Indian Accounting Standard, in this particular session we have decided to pick up an Ind AS which is very similar to accounting standard which you did in your earlier phases of education. If you remember, you did actually government grant, that is accounting standard, isn't it, or not, AS 12 earlier. So corresponding to it now is there Ind AS that deals with government grant, not a very tough one, in fact, to be very honest, virtually similar to the one actually which we have already gone through, as I said, during earlier phases of education, but with slight difference, not very high amount of difference, but with slight difference. So Indian Accounting Standard AS 20, as I said, we are going to pick up in this particular session. This is the standard which we are going to start up with, correct? So if you are ready, then we too on our side are absolutely ready. So as you know, we have to write a little bit, so we will write here first of all, and then we will talk about the intricacies of the standard. Ind AS. Ind AS 20, remember one thing. This is the standard which we are picking up. This standard is corresponding to International Accounting Standard 20, corresponding to IAS, International Accounting Standard 20. As you know, International Accounting Standard comprises of International Accounting Standard and IFRS. Now, Ind AS 20 is corresponding to International Accounting Standard 20. And as far as its corresponding Indian GAAP is concerned, that is AS 12, that you have already gone through. So now we are going to pick up. तो बेटे start करते हैं अब. तो सबसे पहले तो आपको मालूम ही है कि इसका ताल्लुक किससे है, फिर भी हम अब लिखेंगे. लिखे आप सबसे पहले deals with government grants. मेरा अपना मानना है कि स्टैंडर्ड जितना ज़्यादा लिख के करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आता है. तो कई बच्चों को लिखने में थोड़ा सा दिक्कत भी होती है, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो फायदे में रहेंगे. डील्स विद गवर्नमेंट ग्रांट, और थोड़ा फास्ट लिखेंगे. तो स्टैंडर्ड का ताल्लुक गवर्नमेंट ग्रांट से है. स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू ले डाउन accounting treatment तो ये स्टैंडर्ड कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ले डाउन करता है. किस चीज के लिए? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर नॉर्म्स for government grant and government assistance. ग्रांट एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस. तो गवर्नमेंट किसी एंटिटी को जो ग्रांट देती है या असिस्टेंस देती है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके डिस्क्लोजर नॉर्म्स क्या होंगे, उसके बारे में ये स्टैंडर्ड हमें कुछ गाइडलाइंस देता है. गवर्नमेंट असिस्टेंस सच एज subsidies, subventions. बेटा सबवेंशन का मतलब क्या होता है? ये स्टैंडर्ड की टर्म है. सबवेंशन, SUBVENTIONS. सबवेंशंस का मतलब है कुछ सपोर्ट. वैसे इसका एग्जैक्टली लिटरल इंग्लिश में मतलब है सपोर्ट फॉर ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग, करेक्ट? तो गवर्नमेंट ग्रांट और असिस्टेंस के बारे में ये स्टैंडर्ड हमें कुछ गाइडलाइंस देगा कि किस तरीके से उनकी अकाउंटिंग होगी और किस तरीके से उनका डिस्क्लोजर होगा. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा हम आगे ये भी पढ़ लें कि AS 20, Ind AS 20 does not deals with A, government assistance
government assistance that is provided to an entity in the form of tax benefits such as tax holidays, investment tax credit, reduced income tax rates, पर इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट कभी कभी किसी एंटिटी को क्या करती है, कुछ बेनिफिट्स देती है कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में अगर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं तो हम आपको 10 की बजाय 15 इयर्स का टैक्स हॉलिडे पीरियड दे देंगे। आपने पढ़ा है ना टैक्स हॉलिडे पीरियड के बारे में, तो ये इसका टैक्स का बेनिफिट मिल गया एंटिटी को। या कभी कभी एंटिटी कहती है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम आपका टैक्स कम कर देंगे या टैक्स वेव कर देंगे। इसी तरह कभी बार गवर्नमेंट कहती है कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया में आप इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो हम आपका टैक्स रेट कम कर देंगे। तो इस तरह के जो टैक्स बेनिफिट्स हैं ये इंड एस 20 के दायरे में नहीं आएंगे। बी, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन in the ownership of an entity, बेटे ध्यान रखें, अगर गवर्नमेंट ओनरशिप में आ गई फिर तो इसका मतलब हो गया गवर्नमेंट ने अपने को ही गवर्नमेंट असिस्टेंस दिया है, तो उस केस में इंड एस अप्लाई नहीं होगा, इंड एस 20 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन अपने साथ करी गई है। स्पेशल प्रॉब्लम्स arising in accounting for government grants, बेटा मैं GG लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, गवर्नमेंट ग्रांट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स FS, in financial statements reflecting the effect of changing prices। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है किसी एंटिटी को कोई गवर्नमेंट ग्रांट तो मिली लेकिन वो बड़ी हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है जहां प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो वहां गवर्नमेंट को मेजर करने के लिए, गवर्नमेंट ग्रांट को मेजर करने के लिए, वैल्यू करने के लिए हमें प्राइस के जो इफेक्ट होते हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी इंड एस 20 अप्लाई नहीं करेगा। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में अगर किसी एंटिटी को गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है तो वो इंड एस 20 के दायरे में नहीं आएगी। डी, government grant covered under Ind AS 41, under Ind AS 41। Ind AS 41 का ताल्लुक बेटे एग्रीकल्चर से है, तो उसका ट्रीटमेंट जो होगा वो इंड एस 41 के हिसाब से होगा। तो ये चीजें भी आपको मालूम होनी चाहिए। ये लिख लिया आपने, मैं दूसरी शीट ले लेता हूं और ये वाली शीट फिर मैं अब हटा देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा, नहीं है तो आप पॉज करके बाद में लिख सकते हैं। इतना देखने के बाद अब देखना यह भी जरूरी है कि गवर्नमेंट क्या है, तो कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जिनको अब हमें पढ़ना पड़ेगा। तो लिखे मेरे साथ साथ, फोर्थ, गवर्नमेंट। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से हमारा मतलब क्या है। गवर्नमेंट रेफर्स टू
गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट, अब स्टैंडर्ड ने ऐसे लिखा है तो क्या कर सकते हैं, हमें भी ऐसे ही लिखना पड़ता है. गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट, करेक्ट, रेफर्स टू गवर्नमेंट एजेंसीज, refers to government agencies and similar bodies whether local, national or international. तो गवर्नमेंट का यहां पर मतलब लोकल गवर्नमेंट से भी है, नेशनल से भी है और इंटरनेशनल से भी है. करेक्ट. पहले तो गवर्नमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर होना चाहिए. स्टैंडर्ड ये कहता है. उसके बाद गवर्नमेंट असिस्टेंस. गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है? गवर्नमेंट असिस्टेंस, government assistance is action by the government या by government designed, ये स्टैंडर्ड की लैंग्वेज है, designed to provide an economic benefit स्पेसिफिक. स्पेसिफिक का मतलब पर्टिकुलर. स्पेसिफिक टू एन एंटिटी, specific to an entity or range of activities, range of activities qualifying under certain criteria. कुल मिलाके कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है, किसी भी तरीके का गवर्नमेंट सपोर्ट है या इकोनॉमिक गवर्नमेंट सपोर्ट है या असिस्टेंस है जिससे कि किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक एंटिटी को बेनिफिट मिलता है या गवर्नमेंट की कुछ ऐसी रेंज ऑफ एक्टिविटीज है जिससे कि बेनिफिट मिलता है. तो इसके बारे में लेकिन चर्चा धीरे धीरे हम अभी आगे भी करेंगे. 6 लिखें गवर्नमेंट ग्रांट्स. Government grants. Government grants क्या है? Government grants are government assistance. Government assistance in the form of transfer of resources. ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस. ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस टू एन एंटिटी. In return for past or future compliance with certain conditions relating to
operating activities of the entity. Operating activities of the entity. Of the entity. इसका मतलब क्या बना? इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट का असिस्टेंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज. इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिसोर्स ट्रांसफर होने चाहिए, तभी वो गवर्नमेंट ग्रांट के दायरे में आएगी. सपोज गवर्नमेंट एक एंटिटी को ये कहती है, लेट अस से इसरो, करेक्ट, सबको मालूम है रॉकेट लॉन्च वगैरह हम जो करते हैं, तो इसरो मान लेते हैं किसी एंटिटी को ये कहता है कि आप हमारे यहां आकर के 5 आवर्स तक स्पेस एक्टिविटी कर सकते हैं, पर यहां गवर्नमेंट ने कोई रिसोर्स ट्रांसफर नहीं करा. दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ए ग्रांट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? in order to qualify as a grant, that is very important that there must be some transfer of resources. Is it clear to you? तो जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें कोई ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज नहीं था, तो इसलिए उसको हम ग्रांट नहीं कह सकते. एंड दैट मस्ट बी इन कनेक्शन विद व्हाट वी कॉल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी. ये भी आपको मालूम होना चाहिए. इसी के अंदर एक पॉइंट मैं लिखाना चाहूंगा, गवर्नमेंट असिस्टेंस which cannot have a value placed on them on a reasonable basis, and transactions which cannot be distinguished from normal trading activities. Are excluded का मतलब है उनको हम गवर्नमेंट ग्रांट के रूप में नहीं रखेंगे. कोई भी ऐसी गवर्नमेंट ग्रांट जिसकी की वैल्यू प्लेस करना बहुत क्या बोलते हैं मुश्किल है. जैसा कि मैं एग्जांपल दे रहा था कि हमने कहा भाई 5 आवर्स के लिए आप इस हमारे यहाँ का टाइम यूटिलाइज कर लो. Now it is very difficult to actually now put up a value on that. तो अगर किसी ट्रांजैक्शन की गवर्नमेंट असिस्टेंस की वैल्यू को प्लेस करना रीजनेबल बेसिस के हिसाब से बहुत मुश्किल है, या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट ग्रांट है जो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी से अलग करना बहुत मुश्किल है. जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एंटिटी है जो चैरिटीज में डील करती है, जिसका काम ही पैसा लेना देना है. चैरिटीज को कई लोग डोनेशंस वगैरह देते हैं, तो यहां पर जो गवर्नमेंट का डोनेशन या असिस्टेंस होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज. तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्रांट्स हैं उनको हम इस स्टैंडर्ड के दायरे में, गवर्नमेंट असिस्टेंस के दायरे में नहीं लेकर के आएंगे. इज इट क्लियर टू यू? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हाट वी कॉल सेंटेंस. अब इतना देखने के बाद हम जरा इसके अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स पर आते हैं. स्टैंडर्ड क्या प्रोवाइड करता है, मैं एक शीट और ले लेता हूं. लीजिए जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट 7th. Accounting treatment and presentation
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन। लीजिए जी, इससे पहले कि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से ही रिलेशन है। ए, रिकग्नाइजेशन। गवर्नमेंट ग्रांट को रिकग्नाइज कब करा जाएगा? रिकग्नाइजेशन ऑफ ग्रांट। How the grant will be recognized? Government grants shall be recognized. Government grants shall be recognized. Government grants shall be recognized when there is reasonable assurance. There is reasonable assurance that A, entity shall comply with the conditions attached to the grant, attached to the grant, and B, grant shall be received तो जब हमें रीजनेबल एश्योरेंस है कि हम गवर्नमेंट से संबंधित सभी कंडीशंस को, गवर्नमेंट ग्रांट से संबंधित सभी कंडीशंस को अगर हम पूरा कर लेंगे और अगर हमें यह यकीन है कि गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगी, देन ओनली एन एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। पहले तो यह चीज मालूम होना चाहिए। बी, टेक्निकली ये तो था रिकग्नाइजेशन का एस्पेक्ट, और अब हम देखेंगे डिफरेंट केसेस। तो गवर्नमेंट ग्रांट अगर हमें मिलती है इसलिए कि हमने पास्ट में कोई खर्चा करा था या हम फ्यूचर में कोई खर्चा करेंगे, अगर हमें इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ग्रांट मिलती है तो उस ग्रांट को हमें डायरेक्टली अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकग्नाइज करना है। इज इट क्लियर टू यू? मैंने क्या कहा, अगर कोई भी खर्चा हमने पास्ट में करा है या हम कोई खर्चा फ्यूचर में करेंगे, अगर इस पर्पस के लिए गवर्नमेंट हमें ग्रांट देती है, याद रखें गवर्नमेंट हमें हर खर्चे के लिए ग्रांट थोड़ी देगी। अगर गवर्नमेंट को लगता है भाई ये खर्चा जो है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है, सोशल वेलफेयर के लिए है, या गवर्नमेंट को लगता है उस चीज को प्रमोट करने के लिए जो कि गवर्नमेंट खुद चाहती है, तो कई बार गवर्नमेंट इस ऐसी चीजों के लिए हमें ग्रांट देती है। तो अगर कोई खर्चा हमने करा है, पास्ट में करा हो या हम फ्यूचर में करेंगे, अगर ऐसे खर्चे के लिए गवर्नमेंट की कोई ग्रांट मिलेगी तो उसको हमने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज करना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो अब आप इसमें साथ साथ मेरे लिखेंगे, तो मैं जरा दूसरी शीट को भी ले लो। करेक्ट? तो लिखे मेरे साथ साथ, इसको मैं जरा रेड पेन से लिख दूं। 1 बी के अंदर भी 1, इसमें लिखे आप मेरे साथ साथ, व्हेन ग्रांट is receivable for expenses incurred in the previous period.
इन द प्रीवियस पीरियड। अगर कोई खर्चा हमने प्रीवियस पीरियड में करा है तो इसमें हम क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे सच ग्रांट is recognized, such grant is recognized in statement of profit and loss account, statement of profit and loss in the period in which it becomes, it means government grant, it becomes receivable, it becomes receivable, it becomes receivable। इसको समझने के लिए सपोज कोई एंटिटी है, दिस इज करंट ईयर, मान लेते हैं कि एंटिटी ने करंट ईयर के पहले के साल में, इससे पिछले साल में कोई खर्चा करा था। एक्सपेंसेस ऐसा खर्चा करा था लेटर से जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए था। गवर्नमेंट को लगा कि ये खर्चा ये एंटिटी कर रही है और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कर रही है, तो गवर्नमेंट ने हमें क्या करा, करंट ईयर में मान लेते हैं इस खर्चे के लिए एज ए कंपनसेशन मान लेते हैं 5 लाख रुपीस दी है। टू मीट दिस एक्सपेंस और फॉर द कंपनसेशन, टू कंपनसेट दीज एक्सपेंसेस गवर्नमेंट डिलीवर्ड एज 5 लाख। नाउ दिस 5 लाख इज नथिंग बट ग्रांट। अब ये ग्रांट है और ये प्रीवियस ईयर के करे गए खर्चे के लिए है। तो मेरी एंट्री क्या होगी इस केस में, मैंने अभी आपको बताया। पहले तो मैं एंट्री लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट अकाउंट, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, जी गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। 5 लाख से मेरी ये एंट्री होगी। अब मैंने ये बताया कि जिस साल भी ये हमें मिलेगी या जिस साल भी ये मिलने वाली होगी उस साल हम इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ले जाएंगे। तो अब मेरी अगली एंट्री होगी गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। हम मान लेते हैं कि ये ग्रांट हमें इसी साल मिली, तो अब हम इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ले गए। इज इट क्लियर टू यू? तो अगर कोई ग्रांट हमें मिलती है एक ऐसे खर्चे के लिए जो हमने प्रीवियस ईयर में करा है, तो जिस साल भी हमें ग्रांट का अमाउंट मिलने वाला होगा उस साल हम उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ले जाएंगे। एक तो है ये चीज, लिख लिया अगर आपने ये, अगर ये लिख लिया है तो फिर मैं अब आगे बढ़ता हूं। और मैंने एक और शीट उठाई। अब मैंने लिखा पॉइंट नंबर 2, तो इसमें लिखे गवर्नमेंट ग्रांट फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। इससे पहले कि मैं इसके बारे में बताऊं तो मैंने इसमें लिखा सच ग्रांट is recognized, such grant is recognized in the statement of P&L, no doubt, in the statement of P&L, SPL, of the period in which
entity qualifies to receive it. सिंपल वर्ड में ट्रीटमेंट इसका भी पिछले वाले की तरह ही है। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, किसी एंटिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। मान लेते हैं, इसको मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूं। मान लेते हैं कोई एंटिटी है, मान लेते हैं इस एंटिटी का नाम विंग फिशर है। किंग फिशर नहीं लिखा मैंने, जानबूझ के विंग फिशर लिख दिया। अब मैंने किंग फिशर क्यों नहीं लिखा वो तुम्हें मालूम है। मान लेते हैं कि ये जो एंटिटी है, करेक्ट, ये एक एयरलाइंस है, प्राइवेट एयरलाइंस। पिछले कुछ सालों से ये एंटिटी लॉसेस में जा रही है, करेक्ट, ये एंटिटी लॉसेस में जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि इस एयरलाइन की बहुत जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इस एंटिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। मान लेते हैं करंट ईयर में गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट, करंट ईयर में गवर्नमेंट ने इसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। मान लेते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट 100 करोड़ का है, ठीक है। तो इस केस में हम कहेंगे कि गवर्नमेंट ने यह फाइनेंशियल सपोर्ट इस एंटिटी को दिया है टू ओवरकम देयर लॉसेस, नो डाउट अबाउट दैट, एंड फंक्शन इन एन यूजुअल मैनर। तो ये जो केस है इसका एग्जाम्पल बनता है। तो मैंने बताया कि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में गवर्नमेंट कोई ग्रांट देती है तो उसको हम इमीडिएटली पीएनएल अकाउंट में रिकॉग्नाइज करेंगे। ऑफ कोर्स हम पीएनएल अकाउंट में उस साल ले जाएंगे जिस साल हम क्वालिफाई करते हैं ग्रांट को रिसीव करने के लिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, ये तो हो गई गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव करने की एंट्री। और फिर हम लिखेंगे जिस साल हम क्वालिफाई कर जाएंगे कि भाई हमें अब ये हम क्वालिफाई कर गए, डेट मीन वी आर वेरी रीजनेबली श्योर डेट वी कैन मीट द एसोसिएटेड टर्म्स एंड कंडीशंस, तो हम इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। हमारी एंट्री जो हो जाएगी गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट 100। समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू यू? पॉइंट नंबर 3, non-monetary grants. Non-monetary grants. नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स नाम से ही पता लग रहा है नॉन मॉनिटरी नेचर की है, करेक्ट। तो जो नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स होंगी, स्टैंडर्ड इंड एएस क्या कहता है? इंड एएस कहता है कि उसको हम फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। Non-monetary grants such as land or other resources are accounted for at fair value। इनको हम फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे। यहां पर इंड एएस 20 इंडियन गैप एएस 12 से अलग हो जाता है। तुम्हें याद होगा इससे पहले जो आपने गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ा था उसमें नॉन मॉनिटरी ग्रांट को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते थे। मैंने कहा था ना कि जो नॉन गवर्नमेंट ग्रांट हैं हमें मिल रही हैं, अगर वो डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलती थी तो हम क्या करते थे उस केस में, इससे पहले ही जो आपने करा हुआ था डिस्काउंटेड पर करते थे। लेकिन अगर कोई फ्री ऑफ चार्ज मिलती थी तो आप क्या करते थे, टेक्निकली आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे, एक बहुत नॉमिनल वैल्यू पर आप रिकॉग्नाइज करते थे, वो ₹1 पे 100 पे इस तरीके से हम लोग आपको बताते थे। पर यहां पर क्या कह रहा है कि कोई भी अगर नॉन मॉनिटरी ग्रांट मिलेगी तो उसको फेयर वैल्यू के हिसाब से रिकॉग्नाइज करना है। अब इसको मैं कैसे रिकॉग्नाइज करना है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। होता क्या है कि बुक्स में और स्टैंडर्ड्स में हमें सिर्फ
गाइडलाइंस तो मिल जाती है, लेकिन जरा एग्जाम्पल कई बार कम मिलते हैं, तो जिससे समझने में प्रॉब्लम होती है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि समझने में प्रॉब्लम ना आए। ये मैंने क्या करा, एक एग्जाम्पल के लिए ये एक पहले तो लाइन खींची, जैसा कि हमारी आदत है। मान लेते हैं कोई एंटिटी है। अब उस एंटिटी को गवर्नमेंट ने क्या करा, एक लैंड दी। एंटिटी को गवर्नमेंट ने लैंड दी, और इस लैंड की जो फेयर वैल्यू है, ध्यान से सुने, फेयर वैल्यू मान लेते हैं 100 करोड़ की है। लैंड की फेयर वैल्यू 100 करोड़ की है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें ये लैंड सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ में दे दी। ओ माय गॉड, 90 करोड़ का बेनिफिट हो गया आपको। अब इसको रिकॉग्नाइज कैसे करा जाएगा, इसकी क्या एंट्री होगी, ध्यान से सुने। तो इसकी एंट्री मैं यहीं पर करने की कोशिश करता हूं। आपको मिल क्या रहा है, लैंड मिल रही है। ये लैंड क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट है। इस समय आपने देखा आपको लैंड मिल गई कितने की, 100 करोड़ की। अब लैंड जो आपको 100 करोड़ की मिली, आपने पे कितना करा टू बैंक, आपने पे करा 10 करोड़ टू गवर्नमेंट ग्रांट। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ग्रांट आपको हो गई 90 करोड़ की। लेकिन अगर मैं इसको पुराने वाले एएस के हिसाब से करता तो मेरी एंट्री सिर्फ क्या हो जाती, मेरी एंट्री होती, मेरे को जितने पर मिली मैं उतने पर लैंड को रिकॉग्नाइज करता। लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 करोड़ 10 करोड़, बस मैं उतने पर रिकॉग्नाइज करता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? खैर अभी हम पुराने वाले स्टैंडर्ड से कंफ्यूज नहीं करना चाहते। सिर्फ पॉइंट ये है कि इंड एएस में अगर आपको कोई नॉन मॉनिटरी ग्रांट मिलती है, और नॉन मॉनिटरी ग्रांट अगर फ्री, अगर डिस्काउंटेड प्राइस पर, यहां ये डिस्काउंटेड प्राइस पर मिली है, फेयर वैल्यू के हिसाब से हमने उसको रिकॉग्नाइज करा, क्योंकि हकीकत में हमें लैंड मिली है। लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट का पोर्शन कितना हो जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू एंड द अमाउंट विच यू हैव पेड फॉर द सेम। अब मान लो इसी केस में अगर ये मुझे फ्री में मिलती, चलो मैं इसको दूसरे पेज में करता हूं। मान लेते हैं कि मेरे को ये फ्री में मिलती, तो तब मैं क्या करता, ये लैंड है जिसकी की फेयर वैल्यू 100 है, लैंड, और मैंने जो इसके लिए पेमेंट करी 0 करी। हमने इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करी। तो इस केस में मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक तो मेरा कुछ गया ही नहीं है, लैंड अकाउंट डेबिट 100 करोड़ फेयर वैल्यू पर लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट नील, कुछ गया ही नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट आपकी 100 करोड़ की हो गई। बात समझ में आ गई? यानी कि नॉन मॉनिटरी ग्रांट को हम अकाउंट करते हैं बेसिकली किसके हिसाब से, फेयर वैल्यू के हिसाब से। ये आपको मालूम होना चाहिए। यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्का नहीं है। हम मान लेते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने थर्ड केस देखा था, अब हम फोर्थ केस की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ केस में मैंने लिखा ग्रांट रिलेटेड टू, ग्रांट रिलेटेड टू ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट। अब ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, अब मेरा स्केल का है। अब कोई ग्रांट अगर मेरे को मिली है रिलेटेड टू एसेट, तो एसेट डेप्रिशिएबल भी हो सकता है और नॉन डेप्रिशिएबल भी हो सकता है, ये तो आपको पता ही है, करेक्ट। अगर ग्रांट आपको मिली है किसी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, अगर किसी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए ग्रांट मिली है तो तब आप क्या करेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि इस तरह की जो ग्रांट मिलती है ना नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए,
जनरली इन ग्रांट के पीछे कुछ ना कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं। जैसे मुझे कोई ग्रांट तो मिल गई, मान लो गवर्नमेंट ने मेरे को एक लैंड दे दी, ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, लेकिन गवर्नमेंट 99.99% कुछ ना कुछ इस पे कंडीशन इंपोज करती है, ऐसे फ्री में नहीं देती है। जैसे गवर्नमेंट मेरे को कह देगी कि इस लैंड के ऊपर आप स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, तो ये अपने आप में एक कंडीशन है। अब स्कूल बनाना या हॉस्पिटल बनाना या कोई और चैरिटेबल चीज बनाना या कोई भी चीज उस पर बनाना जो गवर्नमेंट चाहती है, उसकी मेरे लिए कुछ कॉस्ट होगी। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए अगर कोई ग्रांट मिलेगी तो उस ग्रांट को ऑफ कोर्स हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ले जाएंगे। यहां पर भी इंड AS 20 अलग हो जाता है AS 12 से। इंडियन गैप में आपको याद है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के ट्रीटमेंट। खैर, अब हम यहां पर फिलहाल बातचीत कर रहे हैं, तो हम यहां नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के अंदर मैंने क्या लिखा, सच ग्रांट्स are first of all set up, set up in deferred government grant account, ये DGA जो मैंने लिखा है, ध्यान रखें इसका, ये deferred government grant के लिए लिखा है, deferred government account, and then systematically recognized in statement of P&L over the period that bears the cost of meeting the obligations। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, वैसे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी पहले मैं जरा इसको क्लियर कर दूं। इसका मतलब क्या है कि सपोज कोई एंटिटी है और उसको एक पीस ऑफ लैंड दिया गया, उसको लैंड मिली, या हम यूं कहें कि एंटिटी एक्वायर्ड लैंड, जरा ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं, एंटिटी एक्वायर्ड लैंड फॉर ₹100 करोड़। एंटिटी ने 100 करोड़ में लैंड खरीदी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट गेव ए ग्रांट ऑफ 80 करोड़। गवर्नमेंट ने हमें 80 करोड़ की ग्रांट दे दी लैंड खरीदने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कंडीशन क्या रखी, कंडीशन स्कूल टू बी बिल्ट। गवर्नमेंट ने कहा कि इस लैंड के ऊपर आप एक स्कूल बनाओगे। क्वेश्चन ये बन गया कि एन एंटिटी स्पेंट ₹100 करोड़ इन एक्विजिशन ऑफ ए प्लॉट ऑफ लैंड बट रिसीव्ड ए ग्रांट ऑफ 80 करोड़ फॉर द सेम ऑन ए कंडीशन दैट एंटिटी इज सपोज टू बिल्ड अ हॉस्पिटल या स्कूल या वट एवर इट माइट बी। अब ध्यान से सुने, अब एंटिटी को लग रहा है कि स्कूल बनाने में 5 साल लग जाएंगे। एंटिटी को यह लग रहा है, एंटिटी को लग रहा है स्कूल बनाने में नियर अबाउट 5 इयर्स का टाइम लग जाएगा। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। एंटिटी को यह लगा कि स्कूल बनाने में 5 साल का वक्त लगेगा और स्कूल बनाने में जो खर्चा लगेगा, पहले साल में
मान लेते हैं खर्चा लगेगा 1 करोड़, दूसरे साल में 2 करोड़, तीसरे साल में 3 करोड़, चौथे साल में 4 करोड़, फिफ्थ ईयर में लेट अस से 5 करोड़ और 5 साल के बाद स्कूल बन के तैयार हो जाएगा। यानी कि ये टोटल खर्चा कितना हो गया, ये स्कूल बनाने का खर्चा या कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जरा इसको ऐड करें, 3 6 4 कितना 15 आ गया, राइट, 9 12 14 15, टोटल 15 करोड़ का खर्चा होगा। तो आपने इसको, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि इस तरह की ग्रांट को हमें पहले तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ले जाना चाहिए और सिस्टमेटिकली हमें उसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में रिकॉग्नाइज करना चाहिए इन प्रपोर्शन टू दी कॉस्ट। अब इन प्रपोर्शन टू दी कॉस्ट का क्या मतलब है, जरा मैं नेक्स्ट शीट में इसको बताने की कोशिश करता हूं। लीजिए जी, अब मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा, देखो ध्यान से। पहले तो मुझे यह बताओ कि जब मुझे ग्रांट मिलेगी तो मेरी एंट्री क्या होगी। सर एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट अकाउंट होगी, बिल्कुल होगी। हम मान लेते हैं आपकी बात, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। यहां तक तो आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे पहले वैसे एक एंट्री आपको और करनी चाहिए। अब जगह नहीं है, चलो मैं यहां कर देता हूं। पहली एंट्री वैसे आपकी लॉजिकली होनी चाहिए, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। खैर ये एंट्री मैंने आपसे पूछी नहीं थी। 100 करोड़ में हमने लैंड खरीदी, पहली एंट्री तो ये होगी। फिर हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली, अब ये एंट्री करी जाएगी। गवर्नमेंट ग्रांट हमें 80 करोड़ की मिली है, तो 80 करोड़ की मेरी ये एंट्री हो जाएगी, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेटअप कर दूंगा। सेटअप का मतलब है मैं इसको कहां पर रख दूं, इस गवर्नमेंट ग्रांट के पैसे को मैं डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में सेटअप कर दूंगा। गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट 80 करोड़, ये मैंने यहां सेटअप कर दिया, करेक्ट। उसके बाद सेटअप करने के बाद अब मैंने क्या करा, अब मैं ईयर के एंड में इस गवर्नमेंट ग्रांट के पैसे में से कुछ पैसा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। तो मेरी एंट्री होगी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब पहले साल में मैं कितना अमाउंट पीएनएल में ले जाऊंगा, डेट इज इन प्रपोर्शन टू द कॉस्ट बियर बॉर्न बाय द पीरियड। इस पीरियड में खर्चा कितना हुआ, 1 करोड़ का खर्चा हुआ, ये जो मैंने यहां पर लिखा था 1 करोड़, और टोटल खर्चा कितना है 1/15। तो इस रेशियो में मैं इसको रिकॉग्नाइज करूंगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, दैट सिस्टमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ओवर द पीरियड दैट बियर द कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन। आपका ऑब्लिगेशन क्या है, स्कूल बनाना है, करेक्ट। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ईयर में मैं कितना अमाउंट रिकॉग्नाइज करूंगा, जो 80 लाख है टोटल गवर्नमेंट ग्रांट, उसका 1/15, और सेकंड ईयर के एंड में मैं रिकॉग्नाइज करूंगा 2/15, थर्ड ईयर के एंड में 3/15, 4/15 एंड सो ऑन। ये जितना भी आ जाएगा वो आप यहां पर लिख देंगे। इज इट क्लियर टू यू, बात समझ में आ गई। कितना आ गया, कैलकुलेटर मेरे को ढूंढना पड़ेगा। कैलकुलेटर, जस्ट आई विल सी वेदर इट इज अवेलेबल हियर और नॉट। हाँ है, मैं आपको बता देता हूं कितना आ रहा है। अगर आप चाहते हैं तो 80 डिवाइडेड बाई 15, यह आ रहा है मेरे हिसाब से 5.33। पता नहीं, गलत भी हो सकता है, लेकिन आप चेक करके लिख लेना। तो फर्स्ट ईयर में हम इतना रिकॉग्नाइज करेंगे, सेकेंड ईयर में 2/15 एंड सो ऑन। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मैं ये वाली शीट को वापस यहां पर रख रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं करा रहा था ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। उसके बाद अब मैंने यहां पर क्या लिखा, ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट तो मैं बता ही चुका हूं। अब मैंने लिखा डेप्रिशिएबल एसेट। अगर गवर्नमेंट से कोई ग्रांट आपको मिलती है फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, तो उस ग्रांट को आप क्या करेंगे, सच ग्रांट are first of all set up in deferred government account, set up in deferred government grant account, and then
and then recognized in statement of P&L in proportion to depreciation. जिस proportion में आपने depreciation चार्ज करा, इन proportion to depreciation, उस proportion में आप इसको, ट्रीटमेंट तो दोनों में सेम है, पर फर्क क्या है कि हम कॉस्ट के proportion में रिकॉग्नाइज करते हैं या डेप्रिसिएशन जो कि अपने आप में एक कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन के proportion में रिकॉग्नाइज करते हैं. इज इट क्लियर टू यू? तो अब डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड मैं एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करता हूं और उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. अब ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा. मान लेते हैं मेरी एंटिटी ने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा और जो फिक्स्ड एसेट है नॉन डेप्रिशिएबल है. चलो प्लांट एंड मशीनरी कर देते हैं, करेक्ट. इसको भी 100 करोड़ मान लेते हैं. 100 करोड़ में हमने खरीदा. हम ये भी मान लेते हैं गवर्नमेंट ग्रांट हमें 80 करोड़ की मिल गई, करेक्ट. हम ये भी मान लेते हैं कि इस एसेट की लाइफ जो है वो 5 इयर्स की है. और सिंप्लिसिटी के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि रेसिडुअल वैल्यू 0 है आफ्टर 5 इयर्स, करेक्ट. तो मैं किस तरीके से रिकॉग्नाइज करूंगा? पहले एंट्री तो मेरी यही हो जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी या परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी आपने 100 करोड़ की खरीदी, फिर आप गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, कि नहीं? 80 करोड़ से ये एंट्री होगी, करेक्ट. अब 80 करोड़ से ये एंट्री आपकी होगी. उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको सेटअप कर देंगे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट. 80 करोड़ रुपए ग्रांट के आपने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ट्रांसफर कर दिए. अब आप फर्स्ट ईयर के एंड में क्या करेंगे? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से कुछ पैसा निकाल करके ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L में. अब पॉइंट ये बनता है कि कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे. तो इसके लिए आपको डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना पड़ेगा, 5 साल का डेप्रिसिएशन. अब 5 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है. बताओ बेटे, फर्स्ट ईयर के एंड में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 100 करोड़ डिवाइडेड बाई 5, 20 करोड़. सेकेंड ईयर में भी 20 करोड़, थर्ड ईयर में भी 20 करोड़, फोर्थ ईयर में भी 20 करोड़. 100 करोड़ एसेट की कॉस्ट है, भूलना नहीं है, 20 करोड़. तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन का रेशियो कितना आ गया? 1:1:1:1:1 आ गया. तो इस रेशियो में आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L में, यानी कि 80 लाख का 1/5, डेट इज 16 लाख. तो फर्स्ट ईयर में आप 16 लाख की इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे. समझ में आ गया? ठीक है. इसके आगे कुछ और इश्यू हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में.